साहब हमारे लिए किनार पर पंखी घुसी जाए নুরুল হুদা সাহেব, মাননীয় বিধায়ক ডক্টর আসিফ নজর ডাঙরিয়া, মহিবুর রহমান মানকাছাৰৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা, হাইডৰ প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নগাঁও, মানকাছাৰৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল, ৰফিকুলকে প্ৰমুখ কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ, যুৱক NSCY, মহিলা কংগ্ৰেছ নাই, সেৱা দলৰ সহকৰ্মী বন্ধুসকল আৰু কাউণ্টিং কৰিব অহা আমাৰ আজি পৰীক্ষণ শিবিৰৰ এজেণ্টসকল। এইখন আমাৰ সচৰাচৰ ডাঙৰ ৰাজহুৱা সভা নহয়। 4 তাৰিখে যি মিটিং হ'ব, যি আমাৰ কাউণ্টিং হ'ব, সেই কাউণ্টিঙৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে এটা আমাৰ ট্ৰেইনিং কেম্প। ইতিমধ্যে ধুবুৰীৰ যোৱাকালি ধুবুৰী বিধানসভা, গৌৰীপুৰ বিধানসভা, গোলকগঞ্জ বিধানসভা, তাৰপিছত বিলাসীপাৰাত বীৰসিং জুৰুৱা আৰু বিলাসীপাৰাত আমি ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ। আজি ইয়াত কৰাৰ পিছত, মানকাছাৰত কৰাৰ পিছত অহাকালি গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ আৰু সৃজনগ্ৰাম আৰু বৰপেটাত আমি চেঙা আৰু মন্দিয়াত কৰিম। গতিকে মই প্ৰথমেই আমাৰ ইয়াত 14খন টেবুল হ'ব, এজন এয়াৰো হ'ব আৰু 5জন আমাৰ এডিশ্যনেল। সেইসকল ইয়াত উপস্থিত আছেনে নাই, জাষ্ট হাতখন উঠালে মই গম পাই যাম। এজন হ'ল মহিবুৰ ৰহমান, তেওঁতো আছেই। আনিছুল আলম, মাহবুদ, নামটো অলপ হেৰি হৈছে, মাহমুদুল হাছান, আব্দুল লতিফ, আহোঁতে মানে খাব পাৰিব আৰু ৰিয়াজুল হক, মুস্তাউৰ ৰহমান, ৰফিকুল ইছলাম, শহীদুৰ ৰহমান শেখ, মুন্নাফ আলী শেখ, আব্দুল হাই শেখ, শহীদুৰ হুছেইন সরকার, মমিনুর রহমান প্রধানী, জাকির হুসেইন, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, রিয়াজুল ইসলাম মন্ডল, আখিরুল মোল্লা, হাসিদুর রহমান, আব্দুল কাসেম, আবুল কাসেম, সজিবুল হুসেন মোল্লা, সাজিবুল হুসেন মোল্লা, আর কোন কইছে আজি আইব, রাতে আইব, এই দুটা একশন দিকে। রাশিদুল ইসলাম, মনোয়ার ইসলাম মন্ডল, ফিরোজ আলী আহমেদ, আবু সালেহ মোহাম্মদ আলমগীর, আক্তার হুসেইন, শামেশ উদ্দিন, নামটো ধৰিব মনত পৰা নাই, শাহফাৰ আলী শেখ, শৈফাৰ আলী শেখ, মুজাহরুল মুস্তাফা, মোহাম্মদ সাদেক আলী,
মনিরুল ইসলাম, মাহতাব আফসিন ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। মাইক চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। খুব মাইনেটলি কথাবিলাক শুনিব দেই, কাৰণ এইটো ধৈৰ্য লাগিব, গোটেই দিন থিয় হৈ থকা ল'ৰা লাগিব, আৰু নিজৰ টেবুলৰ বাহিৰে বেলেগ একো বুজিব নালাগিব। প্ৰথমে আমি দুটা সৰু সৰু ভিডিঅ' চাম, তাৰপিছত আমাৰ কথাখিনি ক'ম। মোৰ কথাৰ পাছত মোৰ হুদা ডাঙৰীয়াই কথাখিনি ক'ব। এতিয়া আমি সকলোৱে AICCৰ পৰা আমাক সংক্ষেপে 5-7 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' পঠিয়াইছে, সেইটো আমি মাইণ্ডেডলি চাম। তাৰপিছত কপিল চিবাল ডাঙৰীয়াই এটা দেখাইছে, আপোনালোকেও সেইটো চাইছে, সেইখিনিকে আমি অকণমান কনচাইজ কৰি আপোনালোকক আনিছোঁ, সেইটো চাম। তাৰপিছত আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি 5-10 মিনিটত শেষ হ'ব। এতিয়া আমাৰ এই AICCৰ পৰা দিয়া সেইটো আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। नमस्कार साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस चुनाव के नतीजे बिल्कुल सही आए। ऐसी परिस्थिति में मतगणना के दिन काउंटिंग एजेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की वीडियो काउंटिंग एजेंट के बारे में है। काउंटिंग एजेंट एक कैंडिडेट के प्रतिनिधि के रूप में काउंटिंग हॉल में मतगणना के दिन उपस्थित होता है। क्योंकि एक कैंडिडेट कई सारे काउंटिंग टेबल्स पर उपस्थित नहीं होता, इसलिए कानून इजाजत देता है कि जितनी संख्या में काउंटिंग टेबल्स लगाए गए हों उतनी संख्या में काउंटिंग एजेंट अपॉइंट किए जा सकते हैं। मतगणना के दिन से कम 1 सप्ताह पहले रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट को लिखित में काउंटिंग के वेन्यू, डेट और टाइम के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो ये भी बताता है कि कितनी संख्या में काउंटिंग टेबल लगाए जाएंगे ताकि उस हिसाब से काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं, तो उन असेंबली सेगमेंट्स के मतगणना भी एक साथ की जाती है। ऐसी परिस्थिति में असेंबली सेगमेंट और पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग अपने काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं। एक कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट के द्वारा काउंटिंग एजेंट को फॉर्म 18 में अपॉइंट किया जा सकता है, जिसकी 2 कॉपीज बनाई जाती है। एक कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी काउंटिंग एजेंट को दे दी जाती है। किन्हीं परिस्थिति में अगर काउंटिंग एजेंट को बदलने की जरूरत है तो उनका रेवोकेशन फॉर्म 19 के द्वारा किया जाता है। कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि काउंटिंग एजेंट की लिस्ट उनकी फोटो के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग डे से 3 दिन पहले शाम को 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को अवश्य जमा कराएं। रिटर्निंग ऑफिसर इन काउंटिंग एजेंट के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे काउंटिंग एजेंट के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसे काउंटिंग एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को काउंटिंग एजेंट अपॉइंट किया जाएगा उसे चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम, वीवीपैट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की सुरक्षा प्राप्त है, जो मंत्री हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, किसी PSU में कार्यरत हैं या सरकार से किसी तरह का फाइनेंशियल एड ले रहे हैं, ऐसे लोग काउंटिंग एजेंट अपॉइंट नहीं किए जा सकते। काउंटिंग के दिन नियत समय से 1 घंटा पहले काउंटिंग एजेंट्स को काउंटिंग वेन्यू पर पहुंच जाना चाहिए। उन्हें अपने साथ कुछ सादे कागज, पेंसिल, पेन, एक गवर्नमेंट ID कार्ड और फॉर्म 17C जो कैंडिडेट्स ने उन्हें मुहैया कराए है उसकी एक कॉपी और अपना अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्म 18 में लेकर जाना चाहिए। मतगणना वाले दिन काउंटिंग हॉल में सरकारी कर्मचारियों के अलावा कैंडिडेट, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स काउंटिंग हॉल के अंदर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हर एक काउंटिंग एजेंट को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक आइडेंटिफिकेशन बैज दिया जाता है, जिसमें ये इंगित किया जाता है कि वो किसका काउंटिंग एजेंट है और किस सीरियल नंबर की टेबल पर उसे बैठकर काउंटिंग देखना है। उसे अपनी जगह पर बैठकर काउंटिंग की प्रक्रिया को ठीक तरीके से देखना चाहिए और इधर उधर काउंटिंग हॉल में घूमना नहीं चाहिए। काउंटिंग एजेंट्स किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप अंदर लेकर नहीं जा सकते। काउंटिंग एजेंट्स जहां बैठते हैं और जहां काउंटिंग की प्रक्रिया चलती है उसके बीच एक वायर मेश होता है। उन्हें इस वायर मेश का सम्मान करना चाहिए और कभी भी जंप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतगणना के दिन काउंटिंग एजेंट्स के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, कंट्रोल यूनिट का नंबर जो फॉर्म 17C में चुनाव के दिन इंगित किया जाता है, वही कंट्रोल यूनिट का नंबर काउंटिंग के दौरान ईवीएम पर उपस्थित होना चाहिए।
और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अंकित है ठीक तरीके से काउंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा नोट की जाए, इस बात का ख्याल उसे रखना चाहिए। लोगों के द्वारा वोट दो तरीके से दिया जाता है, एक जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा पोलिंग बूथ पर दिया जाता है और दूसरा पोस्टल बैलेट, तो एक फिजिकल पोस्टल बैलेट के द्वारा और एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के द्वारा दिया जाता है। तो अब पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दिए गए वोट्स की काउंटिंग की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। काउंटिंग के वक्त केवल ईवीएम का कंट्रोल यूनिट और फॉर्म 70C को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को खोला जाता है और उसके सील्स को देखा जाता है। उसके बाद यह संतुष्टि होने के बाद कि कंट्रोल यूनिट का नंबर वही है जो फॉर्म 17C में लिखा हुआ है और उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसके वोट्स को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले काउंटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल यूनिट में ऐड का बटन दबाएंगे और रिजल्ट बटन के ऊपर ग्रीन पेपर सील को दबाएंगे। ऐसा करते ही कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बाद कैंडिडेट और उसके कितने वोट मिले ये एक एक करके डिस्प्ले होना शुरू करता है। यह जानकारी काउंटिंग सुपरवाइजर को फॉर्म 17C के पार्ट 2 में बड़े ध्यान से अंकित करनी चाहिए और हमारे काउंटिंग एजेंट्स को भी इस जानकारी को ठीक तरीके से भरा गया है पार्ट 2 फॉर्म 17C में देखना चाहिए। आइए अब हम पोस्टल बैलेट्स के बारे में जानते हैं। पोस्टल बैलेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल बैलेट और एक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। फिजिकल पोस्टल बैलेट में 3 पार्ट्स हैं, एक आउटर कवर, एक डिक्लेरेशन फॉर्म और एक इनर पोस्टल बैलेट। आउटर कवर जो है वो खोलने के बाद उसके अंदर हर एक वोटर के द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को चेक करने के बाद काउंटिंग सुपरवाइजर उसे किनारे रख देता है और फिर अंदर इनर पोस्टल बैलेट को खोलकर उसमें रिकॉर्ड किए हुए वोट को अंकित करता है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट इससे थोड़ा भिन्न है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के भी 3 हिस्से होते हैं, लेकिन उन सबको QR कोड के माध्यम से एन्क्रिप्ट किया जाता है। काउंटिंग सुपरवाइजर इन QR कोड्स को स्कैन करता है और उसके साथ कंप्यूटर एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर जनरेट करता है, जिसे हाथ से काउंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां पोस्टल बैलेट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है उन्हें रिजेक्ट भी किया जाता है, परंतु जहां विनिंग मार्जिन पोस्टल बैलेट्स जो रिजेक्ट किए गए हैं उनसे कम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि एक एक रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट को बड़े ध्यान से देखे और ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर पुनः जांच किए हुए इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करें। आइए अब हम जानते हैं कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स के द्वारा डाले हुए वोटों को रिकॉर्ड करने के बाद रिजल्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ओरिजिनल कॉपी जो पार्ट 2 फॉर्म 17C का होता है उसे रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया जाता है और उसकी एक कार्बन कॉपी सारे काउंटिंग एजेंट्स को दी जाती है। देने से पहले काउंटिंग एजेंट्स के भी सिग्नेचर कराए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखने के लिए कि काउंटिंग की प्रक्रिया और रिजल्ट की प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है, ऑब्जर्वर्स हर एक राउंड में किसी भी 2 कंट्रोल यूनिट्स को एडिशनल काउंटिंग स्टाफ की मदद से जांच कर सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं वोट के रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया ठीक से चल रही है। अलग अलग पोलिंग बूथ के द्वारा पार्ट 2 जो फॉर्म 17C के दिए जाते हैं उसे रिटर्निंग ऑफिसर एक जगह कंपाइल करते हैं और उसे एक कंप्यूटर बेस्ड एक्सेल शीट में एंटर किया जाता है। ऑब्जर्वर और रिटर्नर ऑफिसर को इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि डेटा एंट्री का काम बहुत ही साफ तरीके से बिना किसी गलती के किया जा रहा है। और जब दोनों व्यक्ति आश्वस्त हो जाते हैं कि जो डेटा हर एक काउंटिंग टेबल से पार्ट 2 में 17C के आया है ठीक तरीके से कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है, तो राउंड वाइज पोलिंग बूथ वाइज रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है। यह डिक्लेरेशन आमतौर पर एक बड़े से डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा जाता है और माइक के द्वारा समय समय पर अनाउंस भी किया जाता रहता है। फाइनल रिजल्ट कंपाइल करते वक्त राउंड वाइज रिजल्ट को कंपाइल किया जाता है और सारे असेंबली सेगमेंट के रिजल्ट्स को एक साथ कंपाइल करने के बाद जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें विजय घोषित किया जाता है। यह फाइनल रिजल्ट शीट फॉर्म 20 में प्रिपेयर किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है
कि फॉर्म 17C पार्ट 2 में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से ही फॉर्म 20 में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया हो। अगर कहीं टेंडर वोट पड़े हैं तो उसे भी फॉर्म 20 में अप्रोप्रिएट कॉलम में मेंशन किया जाता है। काउंटिंग के बाद काउंट किए हुए ईवीएम और वीवीपैट्स को सील करने की प्रक्रिया आरंभ होती है। रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम मशीन और वीवीपैट्स को इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के हिसाब से सील करने के बाद स्ट्रांग रूम में स्टोर करने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही किसी कैंडिडेट को विजयी घोषित किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसे फॉर्म 22 में एक सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन दिया जाता है। आइए अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जहां कैंडिडेट को ये लगता है कि किसी कारण से ईवीएम में जो डिस्प्ले हुआ है वोट्स की संख्या वो ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो वीवीपैट के पर्चियों की गिनती की मांग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक राउंड में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट या उसके काउंटिंग एजेंट लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर को वीवीपैट पेपर स्लिप्स काउंट करने के लिए पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन के आवेदन दे सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कानून के हिसाब से एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा इस बात का निर्णय करता है कि क्या वीवीपैट की पर्चियों को गिनती की जाएगी अथवा नहीं। गिनती किए जाने की सूरत में वीवीपैट की पर्चियों से ईवीएम पर दिए हुए संख्या का मिलान किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में वीवीपैट की पर्चियों की संख्या को ठीक माना जाता है और उस हिसाब से रिजल्ट शीट को अमेंड किया जाता है। कई बार रीकाउंटिंग की भी मांग की जाती है और उसके लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर को एक लिखित आवेदन दिया जाता है और कानून सम्मत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके उस पर निर्णय लेता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्रक्रिया ठीक रही है और उसकी जो गिनती की गई है वो भी ठीक है, प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है। यह प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट से वोट की गिनती हो जाने की समाप्ति के बाद की जाती है। इस प्रक्रिया के अंदर एक विशेष वीवीपैट काउंटिंग बूथ बनाया जाता है जिसे वीसीबी कहते हैं और वहां पर हर एक असेंबली सेगमेंट से 5 पोलिंग बूथ से वीवीपैट को ले जाकर काउंट किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहां वीवीपैट के काउंट के द्वारा दिए गए आंकड़े और कंट्रोल यूनिट के द्वारा डिस्प्ले किए गए आंकड़ों में कोई मिसमैच है, वहां पर वीवीपैट की संख्या को सही माना जाता है और उसके हिसाब से रिजल्ट शीट को ठीक किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपमान किए ऑब्जर्वर्स को ये पावर होती है कि किसी भी वक्त विशेष परिस्थितियों में रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे सकते हैं कि वोट को काउंट करने की प्रक्रिया बंद की जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां ऑब्जर्वर को ये लगता है कि बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई है कई सारे पोलिंग स्टेशन पे या काउंटिंग वेन्यू के ऊपर बैलेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है या किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में ऑब्जर्वर काउंटिंग की प्रक्रिया को रोकने के आदेश दे सकता है, परंतु काउंटिंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश केवल इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। ऐसी कोई भी पावर्स ऑब्जर्वर्स को नहीं होती है। जहां 2 कैंडिडेट्स ने बराबर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर किए हैं, उन परिस्थिति में कौन कैंडिडेट विजयी होगा इसका चुनाव एक ड्राफ्ट बॉक्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह परिस्थिति बहुत ही रेयर है और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को इस बात की सूचना दी जाती है। काउंटिंग एजेंट्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अलावा अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आपसे निवेदन किया जाता है कि आप नेशनल वॉर रूम द्वारा मुहैया कराए गए काउंटिंग एजेंट हैंडबुक को देखें और अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।